Okay, I love this song because हमारा प्रोग्राम का नाम ही है दिल दिया गल्ला करा के नाल नाल। तो आज हमारे साथ मंडे को न्यू दिल्ली इंडिया से हमारे साथ हैं परविंदर कौर। शी जॉइंड अस फ्रॉम देयर एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इंडिया में टाइम इज 8 PM, न्यूयॉर्क में इज 10:30 AM। दिस इज द टाइम वी स्टार्ट हेयर। तो जो हमारे गेस्ट आते हैं इंडिया से उनका इवनिंग होता है और हमारे गेस्ट बाद में भी देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनका सबका टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, किसका आफ्टरनून है किसका इवनिंग। सो I want to welcome everybody, all my friends, and of course, Parvinder ji from India. Thank you so Thank much for you. joining our platform. And I'm Thank so you. happy that Rajshri introduced me to you. You seem to be a wonderful person, and I love what you're doing because you're giving so much warmth and friendship and help to a lot of people, a lot of women back home. And we really want to know over here in New York, आप क्या क्या करते हो सब हमको बताना. And you know, like we want to hear that. And before going any further, I would like to give her an introduction of first let me see my friends, how many people are here, and I'm going to get out of this music system. Isko khatam karna hai, and this, because we like to hear the introduction song. And also my request is that if you're watching, you're definitely watching from Facebook, so please apne timeline mein ye program share kar do. Then what happens is that your friends and acquaintances, wherever it reaches, they can also join and listen to this program. So there'll be more people like that. A lot of people come and do that. A lot of guests आते हैं, वो share करते हैं अपने timeline में, so that it goes further. It goes to a lot of people. So anyway, I would like to introduce Parvinder Kaur. She's an affectionate personality, full of warmth and passion. She was born in Mumbai, India, and was brought up in New Delhi. She graduated from Delhi University, and she's a wonderful mother, beautiful wife. We can see that she's beautiful, caring friend, and a respectful executive. She's an exemplary cook and feels satisfied to see the smile on the face of family and friends after serving them the well-crafted and delicious food. परविंदर जी, आपका मुझे तो इंडिया आना पड़ेगा आपका खाना खाने के लिए। बिल्कुल आना ही चाहिए, तभी हमें बताते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं और आपको एक्साइटमेंट हो इंडिया आने की। हाँ, अभी मैंने आना है, नेक्स्ट ईयर आऊंगी जरूर। And she does running and yoga, which is very good for everybody, even here or in India, जहाँ पे fitness थोड़ी अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. So she's into all that, and she loves the energy to work She likes to work tirelessly, towards her goal to provide opportunities to the non-working women. A woman leader, she's a woman leader full of energy and enthusiasm to work for a cause, to build a society that is equal for everyone and balanced. She administrates business with passion and modesty to ensure mutual growth for team members. She believes that a person's most useful asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love. An ear ready to listen and hand willing to help. A keen learner with a clear focus on equality and willingness to question the status quo. She encourages others to participate, leads with empathy. And Parvinder Kaur is a director of Arrow PC Network Private Limited, and this is an ICO certified leading IT service integrator, delivering world-class IT infrastructure services to customers PAN India as well as offshores. And they are a team of dedicated professionals and certified engineers focusing on innovation to provide cost-effective solutions and efficient services. And she's a founder of Disha, Shaping Dreams, giving shape to the dreams of non-working women. And she's an area president, Women Novator. Women Novator is the world's largest platform that connects aspiring women to policy decision makers. The initiative aims to create and sustain a favorable working environment for women leaders and entrepreneurs. So here is Parvinder Kaur. Welcome ji, welcome to our platform, Dil Diyan Gallan. तो आपसे बातें करने का बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा. And I'm so glad that we connected on Zoom and you came over here, although we met only a few days ago. But it looks like I know you for a long time. तो बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for coming. And आप अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में, कैसे आप इस, I mean, being a housewife, how did you get into this thing? So हम थोड़ा सुनना चाहते हैं, how did you, आप
हाउस वाइफ से कैसे इतनी इतनी देखो कितने लीडर्स दिशा आपने किया, आई मीन सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग राइट नाउ फॉर द वुमेन बैक होम, सो प्लीज लेट्स हियर फ्रॉम यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू बीना जी, और थैंक यू राजश्री, क्योंकि राजश्री ने ही मुझे आपके साथ कनेक्ट किया। शी इज दी वेरी गुड फ्रेंड, और बहुत ही दिल की बहुत ही अच्छी है, और दिल दियां गल्ला कर दिया सी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी दिल दियां गल्ला आपस में करते रहते हैं, तो उसने हमें आपके साथ कनेक्ट किया, और थैंक्स टू हर कि हम आज यहाँ पर आपके साथ दिल दियां गल्ला कर रहे हैं सारे मिलके। तो सच्ची में ये बात है कि मैं कैसे, मुझे भी नहीं पता चला कैसे हाउसवाइफ से टर्न किया, धीरे 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 ग्रेजुअली टाइम मैनेजमेंट होती रही, और मुझे एक पता चला कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसे मैं अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर टर्न कर लिया, कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। अब करते करते कैसे हम यहाँ पर आज आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, और और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम एक 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 वुमेन कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम और वुमेन को कोशिश करें, आपस में एक नेटवर्क ट्राइब बनाते जाएं, एक ट्राइब बना लें, सो एक दूसरे की हेल्प करें, और उनकी आपस की दिल दियां गल्ला करके क्या चाहती हैं वो, और उनको सोल्यूशन दे सके, ताकि उनको एक अपना ड्रीम अचीव कर सके, आपस में बात करके, एक दूसरे से सीख कर, सिखा कर, और दूसरों से मिल मिलाकर और आगे बढ़ते जाएं। दैट्स रियली गुड। एंड आपको फिर इनकरेजमेंट कैसे, आप कह रहे थे ना पहले कि इट टुक यू लॉन्ग टाइम टू डिसाइड, अमेरिका में आए तो थोड़ा उसका भी बताना ना, कैसे आपको माइंड में आया जब यहाँ पर आए, यूएसए में विजिट करने आए थे, तो हाउ डिड तो यू? मैं जब हम 2012 में कुछ एक इंसिडेंट हुआ, तो मुझे डॉक्टर्स ने पेसमेकर वगैरह बोल दिया, और कहा कि भी अब तो मुझे तो लगता है बस मेरी जिंदगी मेडिकेशन पे ही रहेगी। तो मगर हमें एक बड़ा अच्छे डॉक्टर, डॉक्टर त्रेहन, जो हार्ट के मेरे बड़े स्पेशलिस्ट हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा बेटा तेरी लाइफ बहुत है, तू ये इतनी छोटी सी उम्र में तुझे नहीं दवाइयों पे मैं टिका सकता, तो तू जा, मजे कर, नो मेडिकेशन, एंजॉय कर। और भाई, और हमने वहां से निकलते साथ हमने अपने कहा चलो जी यूएस से टिकट बुक करो, हम चलते हैं, और हम यूएस से विजिट करने आए अपने आंटी को। और वहां पर मैंने अपनी कजिन्स को देखा, मैंने देखा क्या यहाँ की वुमेन तो इतनी इंस्पायरिंग है, इतना काम भी करती हैं, इंजॉय भी करती हैं, लाइफ भी अपना सब मैनेज किया हुआ है उन्होंने, और कैसे आगे आगे बढ़ती जाती हैं। और मुझे भी लगा नहीं नहीं यार, हमें भी घर जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वी कैन ऑल्सो इंस्पायर अदर्स, कि हमने देखा है और करा है, तो क्यों ना हम भी अपने आप को टर्न करें, ताकि हमें भी देख के कोई इंस्पायर हो सके और अपनी जर्नी को चेंज कर सके। तो मुझे भी जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली से काफी सपोर्ट मिली, और उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि भी नहीं नहीं अब तो हमारे ऑफिस में ज्वाइन करो, और यहाँ पर सारा मैंने सीखा कि कैसे मेरे को क्योंकि एज अ हाउस वाइफ आपको बस अपनी फैमिली, बच्चे और कुछ दिखाई नहीं देता, तब तुम सिर्फ अपने वो करते हो। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझे भी यही लगा कि वो भी मेरी फैमिली है, वो भी मेरे बच्चे हैं, और उनको भी मैंने वैसे ही टेक केयर करना शुरू किया जैसे हम अपने घर पे करते हैं, और उनकी टेक केयर करते करते ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर, और वो सब फाइनेंस, सब ग्रेजुअली मैंने अडॉप्ट करती गई, लर्निंग करते गए, और धीरे धीरे ग्रोथ का जो पड़ाव आया है वो आज आप देख ही सकते हो, कि आप लोगों की सारी वेल विशर्स हैं जो मेरे जितने भी हैं, उनके साथ हम, उनकी ब्लेसिंग्स हैं बड़ों की, तो मैं आज यहाँ पर हूँ आपके साथ दिल दियां गल्लां विच। दैट्स सो नाइस, कितना अच्छा लगता है सुन के, बिकॉज नॉट इजी टू डिसाइड करना कि भी मैंने घर छोड़ के बाहर का काम दूसरा करना है, इट्स डिफरेंट, बाहर जाओ। बट जन यू, आपके हस्बैंड की कंपनी, उनकी कंपनी थी ना, आपकी कंपनी थी जहाँ पे आप गए? हाँ जी, हमारी आईटी कंपनी है, हम दिल्ली में आईटी डेल डेल के पार्टनर है, तो यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा है, और हमने अब यूके में भी अपना ब्रांच खोला है, और अब यहाँ से इंडिया से वी आर गिविंग आईटी सर्विसेज टू ग्लोबल लेवल। वेरी गुड। आपके पास भी आएंगे यूएस से। हाँ जरूर जरूर। ठीक है हाँ, ना। वहाँ पे फेस टू फेस करेंगे दिल दिया गल्ला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आकर तो सेशन, वही। यू नो। अच्छा, हमारे साथ है अभी इंडिया से भी आए हैं मेरे ख्याल, करण सिंह भी हैं, गुरप्रीत सिंह आपके मेरे ख्याल हस्बैंड है वो, एंड ऑल्सो साहिबा मैंने देखा था अभी।
हाँ, ये मेरी फिलाडेल्फिया में मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो भाटिया, राइट? हाँ एंड यहाँ जी। पे न्यूयॉर्क मेरे जो फ्रेंड न्यू जर्सी वाले भी हैं, रमा हम्म। जी न्यूयॉर्क में मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी हैं, कमलेश जी हैं, शी इज़ फ्रॉम न्यू जर्सी, एंड देन आई हैव शैली जी, शी इज़ फ्रॉम शिकागो. Raju Chauhan is also watching. Thank you so much for joining from India and from here. This is going to be very, like I said, very inspiring program because Rajshri ji की वेट कर रहे हैं, शायद वो भी ज्वाइन करें. तो भैया, I'm looking at Parvinder ji. She looks like a very simple lady, but look at all the things that she started. तो ये दिशा के बारे में कुछ बताएं जो आपने शुरू किया. How did you get into that one? Because मैंने देखा आपकी थोड़ी क्लिपिंग्स देखी थी वीडियो की, तो आपकी काफ़ी बड़े 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 प्रोग्राम में काफ़ी आपकी आपको मतलब काफ़ी like lot of inspiring, you got a lot of gifts and lot of credibility from those places. उनके कोई लड़की बोल रही थी, she was telling all good qualities about you. तो उसके बारे में थोड़ा बताएं. And how did you meet राजश्री जी? वो भी let's hear हाँ, मैं about. बिल्कुल बताती हूँ. जैसे आपके साथ कनेक्ट हुए, ऐसे ही हमारे वुमन इनोवेटर की फाउंडर है तृप्ति सुमानी. तो एक दिन फेसबुक लाइव आपने जैसे किया, तो उनका फेसबुक लाइव आ रहा था, तो आई जस्ट पिक्ड अप माई फोन और उनको मैंने कॉल किया उसके सेशन के बाद. तो मैंने कहा कि तृप्ति, आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू बिकॉज कि मैंने आपको देखा है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और काफी वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जुड़ी हुई हैं आपके साथ, और आप एक से एक नेटवर्किंग कर रही हैं और बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं सब मिलके. तो फिर शी सेड कि हाँ क्यों नहीं, आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मेरा तो बस एक ही मोटो है, हेल्प अदर्स. तो कहती ठीक है, फिर आप करते रहो, जो आप कर रहे हो करते जाओ, और करते करते आप देखोगे कि भी आप अपना जो भी, मेरे को लगा कि यार ये तो एक मेरे को दिशा डायरेक्शन सी मिलनी शुरू हो गई है, क्यों ना मैं दूसरी लेडीज को भी डायरेक्शन देती जाऊं और वो भी अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके. तो मेरी कोशिश यही होती है दिशा शेपिंग ड्रीम्स में, हम किसी ना किसी ऐसे टॉपिक को उठाए जो अवेयरनेस की जरूरत है, जिसको वुमेन निग्लेक्ट कर रही है, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रही है, अपने आप को टाइम नहीं दे रही है या उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है. तो हम उस चीजों को, टॉपिक को उठाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, उनकी पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए, सो दे कैन ऑल्सो नेटवर्क. क्योंकि जब आप नेटवर्क करते हो लाइक माइंडेड पीपल के साथ या कुछ है, तो यू लर्न अ लॉट और उसी चीजों से आप आगे बढ़ते जाते हो. तो मुझे यही लगता है कि दिशा शेपिंग ड्रीम्स में हमारा जो भी है, हम 3-4 तरह से काम करते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसमें, मेरा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि उस पे काफी सारी चीजें हम एक्टिविटीज करते रहते हैं. और एक, क्योंकि आप जो वुमन इनोवेटर की हैं वो लेडी सारी खुद लीडर है, और एक ऐसी लीडर, एक जो लेडीज हैं जो बिल्कुल अभी उन्होंने देखी ही नहीं है आगे, काम करना चाहती हैं मगर कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई उनके पास हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आगे करने वाला नहीं है. तो इस दिशा शेपिंग ड्रीम्स हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे आप मेंटर्स भी जुड़ सकते हो, आपकी को कोई जरूरत है तब भी जुड़ सकते हो हमारे साथ, और क्या आप इंस्पायर करने के लिए क्या स्टोरी है या कुछ है. और क्योंकि हमारी आईटी की कंपनी है, हमारे पास काफी अच्छे अच्छे ओईएम्स हैं, सिस्को, सोफोस या कुछ हैं, तो जितनी भी वुमन एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही हैं, तो आई एम ट्राइंग कि भी उनको मैं कॉर्पोरेट लेवल तक उनके बिजनेस को लेके जाए. तो वो जो बिजनेस करना चाह रही हैं या कुछ है उनके बिजनेस की, हम उन चीजों से एक गिफ्ट्स बनाते हैं या कुछ है, और वो गिफ्टिंग हम गिव अवेज में देना चाहते हैं ताकि उनके बिजनेस को उनको रिकॉग्निशन मिले, उनके काम को, उनको जो वो काम कर रही हैं जो अभी उनके पास नेटवर्क नहीं है, उस नेटवर्क तक पहुंचाया जाए. तो मैं उनको गिफ्टिंग में, गिफ्ट गिव अवेज की तरह हम वहां पर काम करते हैं, ताकि उनके गिव अवेज बना देते हैं, कस्टमाइजेशन कर देते हैं, उनकी ब्रांडिंग हो जाती है. तो दैट वे वी आर ब्रिजिंग, कि भी एक ब्रिज बन रहे हैं. एक वुमन एंटरप्रेन्योर्स है जो उनका प्रोडक्ट है, उसको वी आर टेकिंग टू द कॉर्पोरेट लेवल. वेरी इंस्पायरिंग रियली. तो किस किस्म के वो लेके आती हैं, लाइक आइडियाज और हाँ, आइडियाज क्या है उनकी? वुमन जो है घर पे अभी, उसको क्या है कि भी हमने कुछ ऐसी 20 लेडीज के साथ काम करना शुरू किया जो काम तो करना चाहती हैं मगर अभी उनके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्स नहीं है. तो हमने क्या किया, उनको पहले सिलाई मशीन्स लेके दी,
फिर हमने उनको थोड़ा स्टिचिंग सिखाया, किसी तो ये आप उनको सबको आपको किसने डोनेशन करी है या आपने खुद अपनी तरफ से नहीं, दिया? तब तो शुरू तो हम अपने ही से ही करा है, तभी हमने अपने ही से ही किया। फिर हमने धीरे धीरे अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स का करना शुरू कर दिया, जो उससे जो मुझे बेनिफिट्स आते हैं या जो मार्जिन होता है, तो वो हम लेडीज की वुमेन एम्पावरमेंट में ही लगा देते हैं। जिस लेडीज को कुछ चाहिए होता है या कुछ है उनकी एजुकेशन में, और उसमें वो फंड्स जो है हम डाइवर्ट कर देते हैं। तो दीज वुमेन दे कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ, कहाँ से आती हैं ये? नहीं, वो आती नहीं है, हम उनको घर पे ही काम देते हैं। नहीं मतलब क्योंकि कहाँ से, आई मीन जो एरियाज है यहाँ दिल्ली के ही, दिल्ली की दिल्ली है? के, हाँ दिल्ली के ही जो स्लम एरियाज हैं, या जो जहाँ पर उनके काम करने वाले हैं, जो हमारे ही कई जो वर्कर्स हैं उनकी वाइफ है, हम उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं ताकि वो भी अपने घर पे बैठ के काम कर सके। तो भी उनको हम काम देना चाहते हैं ताकि जो वो घर पे स्टिचिंग या वो कर सकती हैं, जो जो चीजें उनको रिसोर्स अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि वो खुद ही जाती मार्केट जाती नहीं है, हम उनको घर पे ही क्या क्लोथ प्रोवाइड करवाते हैं, चीजें सारी चीजें देते हैं, फिर उनको हम ब्रांडिंग करके कॉर्पोरेट में गिफ्टिंग करते हैं। वेरी गुड आइडिया। तो सीख लेती हैं, तो लर्न पहले सीखती तो हाँ होगी ना। हाँ, क्योंकि देखो आज इंडियन वुमेन जितनी भी है उनको स्टिचिंग तो आती ही आती है, या हाँ, स्टिच आती है, उनको थोड़ा सा शेप करने की जरूरत है, उनको थोड़ा बहुत ही मोल्ड करने की जरूरत होती है, और वो कर लेती, और दे आर वेरी गुड लर्नर, फटाफट सीख जाती है। या और दैट्स अभी हमने पीछे कैंडल मेकिंग का भी सेशन करवाया उनका, सो दे कैन लर्न कि भी अब जैसे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे वो घर पे कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स और फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स बनाकर उसको गिफ्ट करवाकर, और उसको कैसे हम गिफ्टिंग वाले में डाल सकते हैं। very inspiring. That's really very good to know. तो These ladies are very, it's good for them क्योंकि आप फिर उनको भी देखो, they are also earning money this way too and helping the family. हाँ Family को बिल्कुल, भी help क्योंकि करते हैं देखो काम, जब तक हम किसी को काम करने लायक नहीं बना देते तब तक कोई फायदा नहीं है। किसी को मनी देना हमारा वो नहीं होना चाहिए मोटो, उसको काम करने लायक बनाना चाहिए। तो हमने अभी ज्वेलरी मेकिंग का भी सेशन करवाया था। ज्वेलरी मेकिंग भी मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, उसका जेम्स एंड ज्वेल्स करके उनका अपना काम है, और उस खुद एंटरप्रेन्योर है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। ना। Is it उसका बहुत सारी, Manmeet कौन is it? हाँ मनमीत सिंह, Manmeet Singh, मनमीत, yeah, वो आई हुई है हमारे प्रोग्राम में, आई हुई है। हाँ जी हाँ जी, तो वेरी मनमीत नाइस। सिंह हाँ, जो है उनका तो हमने उनका भी सेशन करवाया यहाँ एसडीएम के ऑफिस में। वहां पर 50 वुमेन थी, अच्छा, 50 वुमेन ने ज्वेलरी बनाना सीखा, वाह, और उनको हमने पूरा भाई पूरा हमने उनको किट दिया कि भी आप किट लो, किट से सीखो, और उसको फिर अपने पैशन को काम में कन्वर्ट करो, सो यू कैन ऑल्सो अर्न। राइट। क्योंकि तभी देखो काम चल सकता है, फैमिली चल सकती है। देखो मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई भी इंसान होए, अगर अपने कमाई में कमा के पैसे खर्च लेते हैं तो उनको कितनी अपने में कितनी सेटिस्फेक्शन प्राउडनेस मिलती आती है, है। अपने यहाँ बच्चे कोई को भी। किसको दे दे, हाँ भी पैसे मांग रहा है, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप खुद कुछ करो तो उसमें कितनी अपने अपने लिए कितनी रिस्पेक्ट होती है। यू हाँ, मोर रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ टू, इंस्टेड ऑफ तो हम आस्किंग ये कर रही फॉर हैं मनी। हम, तो दिस गुड फॉर द तो लेडीज, इमेज के लिए, उनकी अपनी अपनी इमेज के लिए अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ती है ऐसे। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग बिकॉज यू ब्रिंगिंग द बूस्टिंग देयर यू नो अबाउट देमसेल्व्स। उनकी बूस्टिंग मिलती है उनको सीखने में ही। दे लर्न समथिंग, दे फील मोर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स टू, और फैमिली को भी हेल्प होती है। एंड इट्स गुड टू लर्न समथिंग टू, लर्न करो तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए कुछ। लर्निंग से ही ग्रोथ Yeah, होती है। मेरा भी अपना, जैसे मैं अपनी जर्नी बताऊं, तो मैंने भी जब तक हाउसवाइफ थी मुझे भी नहीं लगता था कि मुझे कुछ आता है। आपके अंदर होता है, बट वो निकलता तभी है जब आप सीखने के लिए तैयार होते हो। yes, अगर आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया, या आप बैठे रहे, या कुछ है आप चाहते ही नहीं कुछ अचीव करना, तो आप कर ही नहीं पाओगे। जब आप कुछ सोचते हो, ड्रीम करते हो, देन ओनली यू अचीव। अगर correct. आपने सोचा ही नहीं, ड्रीम ही नहीं किया, आपके ड्रीम्स ही नहीं है। तो हम सबको यही बोलते हैं कि जितना ड्रीम कर सकते हो अच्छे से अच्छा ऊंचा ड्रीम करो, सो आप तभी उसको चेस कर पाओगे। जब तुम्हारा कोई ड्रीम ही नहीं है, कहीं तो कहते हैं हम सेटिस्फाइड है, हमारा तो है ही नहीं, तो फिर आपको कुछ मिल भी नहीं पाएगा। मैं तो तो कहती हूँ कि रोज इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। हाँ,
और अपने ड्रीम्स मत, नेवर से आई हैव दिस एवरी डे लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कोई ना कुछ चीज़ होती है जो आप सीखते हो रोज, बिल्कुल अगर अपना बिल्कुल। माइंड ओपन रखो तो। नहीं तो ऐसे तो वॉक करने जा रहे हो तो लोग कितनी चीजें देखते हैं, वॉक करके हमारा एक चलो 3 मील हो गया ये दैट्स इट, बट इफ यू गो look at the birds, look at the trees, look at so many things on the way, you meet people, say hello, तो look at that way is different, but if you just go मेरा तो हाँ इतने मेरे हो गए स्टेप्स हो गए मेरा काम खत्म, so there's a two way of looking at things, so it's always something you learn every day, that's what I feel, कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो then you will not move up, अगर कुछ बिल्कुल ड्रीम नहीं करोगे या कुछ सीखोगे नहीं then you, देखो मैंने भी देखो ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, started in the pandemic, I didn't even know what Zoom क्या होता क्या है, छोड़ो करने की बात छोड़ो, Zoom क्या है हमने तो सुना ही नहीं था, कि भाई होता तो है, सुना हुआ था भाई प्लेटफॉर्म ऐसे जाते हैं, लेकिन मैं वो काम करने वाले जाते हैं जो बिजनेस करते हैं उनको जरूरत है, मेरे अगले बंदे को क्या जरूरत है, बट पेंडेमिक चेंज थिंग्स, इट वाज वेरी not a very good thing. A lot of people died and a lot of things, but a lot of good things also came out of it too. Some good things came out of it too. It brought हम people आपसे together. बात कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क इंडिया, मतलब ये है कि और सब a जगह lot पे। of people passed. I mean, a lot of bad things happened. But अब देखो, a lot of people are working from home. उन्होंने full time पहले सब जाते थे भागा दौड़ी. Now some people are learning to do work from home. So it's a big difference. And मेरा भी देखो, I didn't know. किसने मुझे आइडिया दिया कि लोग देखो लेडीज अब काफ़ी घर में डिप्रेस्ड हो गई हैं, घर में बैठती हैं, बोर हो गई हैं, कुछ शुरू करो उनके लिए फेसबुक में या कुछ, मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू डू दिस थिंग, मतलब मुझे बात करने के लिए मुझे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू डू, व्हाट क्या करना है, तो मेरी एक फ्रेंड शी इज़ वेरी, शी इज द शेफ जो मैंने बताया था आपको, उसका नाम है नूपुर, शी सेड, मैंने उसको बोला, कहती वीना जी आज फ्राइडे है ना, इस मंडे को हम शुरू करते हैं, मैं कहा 2 दिन में वीकेंड है, कहते नो मंडे विल स्टार्ट, तो दैट्स हाउ यू नीड टू मीट दोस काइंड ऑफ पीपल टू ब्रिंग यू अप, तो मैंने कहा ओके ठीक है आई विल फॉलो यू, तो उसने सारा प्रिपेयर किया, बताया कैसे करना है कैसे करना है, कहते बट आई कैन नॉट बी देयर ऑल द टाइम, आई एम गोना बी हियर फॉर मे बी 1 or 2 months, जब मेरा काम पिकअप कर जाएगा तो आई विल लीव, तो देन आई स्टार्टेड विद हर, कहते ऐसे बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने क्या शुरू किया था, फिर घर में आपके अपने सारे किचन में जाओ, सारा देखो शेल्व्स में क्या है नहीं चाहिए तो उसको गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, डोंट कीप एवरीथिंग यू डोंट नीड, क्लीन अप एवरीथिंग, जो आपके कपड़े नहीं पहनते उसको साइड में रख दो, यू नो लाइक basic things we started, थोड़ी exercise gym भी जा सकते हैं, go up down the steps, so few things like that we started, but now it's changed to like things up 3.5 years होने वाले हैं, so things have developed goes on, but I'm just saying I didn't know anything about this thing, so if I didn't want to, if I just said नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मुझे तो आता ही नहीं करना, then उधर ही बैठे रहते ना, see I would not have met you, or not have met Rashidi, you not have met a lot of people, तुम्हारे प्रोग्राम ही कोई होते, so this is the example I'm giving, that people have to have dreams, like you said, then only you can achieve your dreams, do something about dream. So I agree 100% what you're saying. तो ये लेडीज के जो आप करते हो हेल्प इंडिया में, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, you know what, that's a very and I feel that those ladies really need a push to do all this, अगर आप उनको हेल्प करोगे तो then they will learn and they will earn something and help their families, which is a good thing for everybody. तो और किस्म के और क्या, और कैसे किस तरीके से हेल्प करते हो, एनी अदर और वे? मेरी हेल्थ की, अभी हमने पीछे एक जो मैक्स हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जैसे अभी ये अक्टूबर मंथ है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो ये कोशिश करें कि हम क्यों ना, जो इंडिया में हमारी लेडीज हैं या कुछ है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनको भी क्यों ना अवेयर करवाया जाए कि कैसे आप अवेयरनेस क्रिएट करके अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हो। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वर्कशॉप्स करवाई थी हमने, तो उस वर्कशॉप में हमने जो डॉक्टर्स हैं उनको इनवाइट किया, डॉक्टर राजिंदर सग्गू हैं मैक्सी हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बताया कि आप अपनी ही सेल्फ केयर से कैसे आप ध्यान रख के और कैसे अपनी सेल्फ टेस्टिंग करके, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप हर महीने मेमोग्राफी करानी है, 6 महीने में करानी नहीं, पहले आपको अपने सेल्फ टेस्ट करना है, उसके बाद आपको पता रहता है कि भी अब आपको अवेयरनेस रहनी है कि भी कहीं कहीं आपको लगा कि यस कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कुछ है, देन नीड टू गो टू डॉक्टर्स, तो आप डॉक्टर पे जाओ, अपनी पूरी अपनी वो करवाओ, सारी मेमोग्राफी कराओ और अपने आप को पूरा एक्टिव और पूरा ठीक रखो।
तो हमने कैंप्स लगाए, तो उनकी पूरी, वहां पर डॉक्टर गीतू कुकरेजा भी थी, जो डॉक्टर कुकरेजा हॉस्पिटल की वो हैं सीनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने भी अपनी इंसाइट्स दिए कि कैसे आप जो लेडीज हैं जो नहीं बाहर निकलती हैं या कुछ है नहीं बात करते या अपने यहाँ शाई रहती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती अपनी बातें, किसी को नहीं बताती अपनी प्रॉब्लम, और कैसे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ के एक मेजर इशू में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसको फिर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको शुरू में ही कंट्रोल करके बात करके किसी डॉक्टर की सलाह लेके उसको शुरू में फर्स्ट स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी अपनी बताया कि भाई ये जो कैसे। जो ये जो इज इट मोबाइल मोबाइल बना हुआ है जाती गोज अराउंड द प्लेसेस, हाउ डू द नो नो वुमन नो गो टू द नो नो हॉस्पिटल? नो, एक हॉस्पिटल के अंदर हमने फिजिकल वो पूरा किया था अवेयरनेस, जो लगाया था वर्कशॉप, वहाँ एक हॉस्पिटल में हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ यहाँ पर हमारी रजौरी गार्डन में ये एक हॉस्पिटल है, तो वहां पर हमने लेडीज को इनवाइट किया था ताकि वो आए। जहाँ किटी पार्टी में जाते हो या टाइम निकालते हो तो आप यहाँ पर भी आके अपनी सेल्फ केयर करो, और वहां पे आपको चाय नाश्ता भी मिलेगा, खाने का भी इंतजाम करते हैं हम लोग, ताकि आपको ये फील ना हो कि हम सिर्फ नॉलेज लेने जा रहे हैं या कुछ है। तो आपको यहाँ पर पूरा उनका केयर की जाती है पर ताकि ये भी जो वो। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, डू दे लाइक आज दिस इज अक्टूबर मंथ, एक्चुअली आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयर, आई मीन ब्रेस्ट का कैंसर का ही काफी करते हैं अक्टूबर में। दे हैव लॉट ऑफ walks and everything, they they give to the donate to the companies they organize lot of things for the breast cancer के लिए बहुत होता है यहाँ पे। but I'm just saying कि do they have any when you go for देखो annual checkup के लिए भी I don't know how many people go in India, women, तो नहीं physical जाती है, इसीलिए हमने अवेयरनेस कर रहे हैं, हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स लगा रहे हैं, ताकि क्योंकि इंडिया में इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, कोई भी जब प्रॉब्लम आने के बाद ही डॉक्टर पे जाता है, कोई भी पहले ध्यान नहीं रखता। तो यहाँ पे तो होता है ना, यहाँ पे भी देखो, here to say this thing, there are some people they don't go, ओ नहीं हम ठीक है, हमको कुछ नहीं होता, हमको फ्लू शॉट नहीं लगाना, हम तो फ्लू शॉट लगा के बीमार हो जाते हैं, दोस काइंड ऑफ थिंकिंग। इवन इफ यू लिव हियर और इंडिया, बात तो अगर ऐसे करोगे तो सेम बात है, बट अवेयरनेस होनी चाहिए, दे शुड गो फॉर एनुअल चेकअप। यहाँ पे तो इनकरेज करते हैं एनुअल चेकअप जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, एंड इफ देयर एनीथिंग कम्स आउट ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, annually then they give you accordingly the proper medicine। and breast checkup, जो मैमोग्राम होता है वो भी ये annual it's recommended for women, I think after a certain age they have to go every year this checkup। so annual checkup होता है, and then if any issue, anything that comes up, they feel they take a lot of x-rays। तो कई बार ऐसे भी होता है कि उनको 3 महीने बाद बुलाते हैं या फिर 6 महीने बाद बुलाएंगे if there's any issue to see anything, any problem। and of course if there's any, they do have it, then they have to go for it, they have options, different biopsy करते हैं, फिर सब कुछ करते हैं। so it's a very important, तो पहले ही पकड़ा जाए तो अच्छा है, यहाँ के कुछ हो जाए and then you catch it, then it's मेरी ये भी, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी ये करने के लिए भी, क्योंकि मेरे बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नहीं ध्यान दिया या कुछ है तो डिटेक्ट हुआ। तो हमने, हमारे बिल्कुल नेबरहुड्स हैं उनके आसपास, मैंने देखा कि यहाँ पर तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं जितनी भी, वो कोई भी ध्यान नहीं देती हैं। आप जो वर्किंग वुमेन है वो फिर भी ध्यान दे लेती है, क्योंकि उसको पता है मैंने ध्यान देना है, मुझे जाना है, अपने ऑफिस जाना है, मेरे को केयर करनी है, तो वो कर लेती है। मगर जो यहाँ हाउस वाइफ है वो ज्यादातर अपने आप को निग्लेक्ट करती है और वो बस अपने आप को ध्यान नहीं देती है। तो उनकी डिटेक्ट हुए, मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो उनकी कीमो भी चली और सब कुछ हुआ और हो रही हैं। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं यार, क्यों ना हम ऐसी वर्कशॉप्स लगाएं जिनसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, क्योंकि एक से एक, दो से दो बात करते हैं तो सबको पता चलता है और सब एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। exactly। तो हम अगर देखो एक जाएगा अपनी फ्रेंड, किटी पार्टीज में जाते हो या जहाँ भी जाते हो, किसको if one person went they should tell everybody, the women, अपनी फ्रेंड्स को बोलें कि भाई आप चेकअप कराओ, आप भी जाओ, कुछ कैंप आपका जो लगा हुआ है वो वुमेन अवेयरनेस का हॉस्पिटल के अंदर कैंप लगा है, जो भी है दे शुड गो एंड दे शुड मेक अ पॉइंट। ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाना है जब
तबीयत खराब है. Can you please mute yourself if you're there? Excuse me, my request is this is a very important program. तो अगर आप अपने आप को म्यूट कर दें तो अच्छा है. Thank you. Thanks a lot. तो मेरा मतलब ये है कि if anybody has an issue, they should go right away to the doctor instead of waiting. तो कि और बढ़ जाए चीज़ और बढ़ जाती है, वो भी प्रॉब्लम होती है ना. Gets worse. So that is the thing. मैं देखूँ कौन है यहाँ पर. Somebody is here. Excuse me, can you please mute yourself? Thank you. So anyway, तो I mean this is the kind of that's a good thing that you tell ladies को. अगर आप ग्रुप में हो, किसी ग्रुप में हो, उनको भी अवेयरनेस उसी ग्रुप में बताओ कि ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गेट इट चेक्ड. और एनी अदर कुछ भी इशू लेडीज की होती है, यू नो, दे कैन गेट द कैंसर एनीवे इन द बॉडी. तो बड़ी मुश्किल होती है फिर उसको ठीक करना. अगर चेकअप कराते रहो देन यू समथिंग इज डिटेक्टेड, यू नो राइट अवे. द सेम थिंग विद एनी अदर प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज, यू नो, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर. तो कईयों का होता पता नहीं होता उनको, लेडीज़ को बेचारियों को तो काम करती रहती है. दे डोंट रियलाइज कि दे हैव ए प्रॉब्लम गोइंग ऑन बट दे डोंट गो फॉर चेकअप. तो हम यही करते हैं दिशा शेपिंग ड्रीम्स में. हमारा यही मेन मोटो यही है कि हम जितनी भी वुमेन हैं उनको इंस्पायर कर सकें ताकि वो हेल्थ को भी ध्यान रखें, अपने काम को भी ध्यान रखें और अपनी ग्रोथ करती रहें, ताकि उनको भी पता रहे कि भी वर्ल्ड में क्या हो रहा है. तो हम उनको दिखाते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद कि कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज हम करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को ज्वाइन करो, आओ और आगे सीखो कि हमने क्या क्या है, और उन्हीं के हिसाब से हम टाइमली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं. हाँ जी. Excuse me, please. कैसे I don't know how to get, you know, how to tell them to leave because they're making a lot of noise. I don't know who it is. Anyway, मैं एक और किसने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर. So ये लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपने कैसे जब आपने शुरू किया काम करना तो हाउ डिड यू हैंडल, कैसे हैंडल किया फैमिली भी और वर्क भी, फैमिली लाइफ का. पहले तो आप सब कुछ करते थे घर में ही, फिर जब आपने जॉब शुरू किया तो ट्रांजिशन में आपने कैसा दोनों चीज़ें हैंडल करी. ये ट्रांजिशन मुझे लगता है सबको करना कई बार लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है ये एक हमारा माइंडसेट है, कि ये एक माइंडसेट है कि हमें अपना, अगर जब हम माइंड बना लेते हैं किसी चीज को कोशिश करनी है और कुछ करना हो तो आपको थोड़ा सा कदम तो उठाने ही पड़ेंगे. और फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और फैमिली भी सपोर्ट करती है. टाइम मैनेजमेंट होता है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है. सो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये टाइम मेरा किस चीज का है. तो उस टाइम में आप मैनेज करते हुए धीरे 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 आपको पता चल जाता है कि भैया ये तो मेरा टाइम है, मेरा ऑफिस का है, ये मेरे को पता है, मेरे बच्चे ने खाना खाना है या कुछ है. वो धीरे धीरे हमारी टाइम की सेटिंग्स हो जाती हैं और उस हिसाब से आपको अपना काम धीरे 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 हो जाता है. तो भाई ये मैंने भी ऐसे ही किया कि मेरे को भी पता था कि सुबह मुझे अगर ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाकर जाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जो लंच, मेरे पहले बड़ा बेटा तो वैनकूवर में था, अब वो भी यहाँ आ गए हैं और सब भाई छोटा बेटा भी है और फैमिली है, हमारी जॉइंट फैमिली है. तो हम एक दूसरे का सब ध्यान रखते हैं. और भाई मैंने सुबह खाना वाना बनाकर जाती हूँ और फिर ऑफिस चले जाते हैं. 10:30 ऑफिस का काम किया, 2:30 में वापस आ जाती हूँ और फिर मैं अपना लंच का पूरा करके और अगेन आई वर्क फॉर माई दिशा शिपिंग ड्रीम्स. और जो कंपनीज का हमारा काम होता है उसके लिए 4 to 6, 4 to 7 अपना काम कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पीरियड में मेरे को टाइम मैनेज करना है अपना. और टाइम मैनेज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है किसी भी रिलेशन में भी या कुछ. अगर आप टाइम नहीं देते हो या कुछ नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं है मेरा ये टाइम ऑफिस जाने का है या घर के है या सोने का है या कुछ है, तो तब इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं फैमिली में या कुछ. तो मगर धीरे धीरे आप I like the way you managed because आप सुबह वहाँ जाते हो, then you come, you make the खाना जो अपना खाने का भी जो होता है आप ले भी जाते होंगे, बच्चों को भी देते होंगे, फैमिली के लिए. then you come बिल्कुल back, आई you कुक cook फॉर फैमिली. हाँ every जी. day आप करते हो. हाँ जी, एवरी डे क्या, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच बनाकर जाते हैं और फिर दोपहर का रात को भी बनाते हैं. तो खाना घर पे ही कोशिश होती है बनाए. That's the best, that's the best यही है.
हाँ और बेस्ट है कि आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छी करी हुई है कि सुबह का टाइम ऐसे, देन यू कम बैक एंड देन शाम को अपना जो अपना खुला हुआ है दिशा, तो उसमें आपको कॉलें आती है कि कैसे करते हो मैनेज दिशा, हाउ डू यू डू नहीं दैट? हम नहीं हम कोशिश यही, जैसे फ्रेंड्स हैं या कुछ है उनके लिए, क्योंकि मेरे को एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने लेडीज का, उनके साथ काम करते हैं और उनको बताते हैं कि भी कैसे आपने, जैसे आज आपके साथ कनेक्ट हो गए या कुछ ऐसे वर्ड टू वर्ड या माउथ टू माउथ हम एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो आप और जूम कनेक्ट कैसे होते हैं, जूम में होते हो कनेक्ट, कैसे करते हो उनके साथ? नहीं, कॉल पे ही, हाँ कॉल पे ही कनेक्ट। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा है, हाँ कोको के दैट्स आल्सो नीड्स और फिजिकल भी जब इवेंट्स करते हैं तो फिजिकल इवेंट्स पे होते हैं तो वहां पर भी हम एक दूसरे से बता सकते हैं या कुछ है। जैसे अभी हमारा संडे सैटरडे को भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का था ग्रुप, वहां पर उन्होंने सबने बताया कि हम क्या क्या काम करते हैं, फिर उसको जैसे प्रमोट कर सकते हो एक दूसरे अपनी फ्रेंड्स को बताओ कि भी हम क्या क्या काम करते हैं या कुछ है। और वो अपने जैसे मनमीत के यहाँ पर ही था, तो मनमीत के यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पे वहां पर हमने बाइंग कर ली एक दूसरे फ्रेंड्स ने एक दूसरे के साथ, ताकि सपोर्ट हो जाती है, ऐसे आपकी वो हो जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। तो किसी मतलब ये आप मीटिंग जो करते हो वुमेन्स की, एंटरप्रेन्योर की, या किधर किसके, लुक्स लाइक ए होटल और समथिंग, यू हैव अ बिग गैदरिंग, काफी नहीं नहीं, अब डिफरेंट जैसे ग्रुप। हमने पीछे जो किया, एक हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया, जैसे अवेयरनेस कैंप था, क्योंकि वहां पर हमें पता है कि भी वहां स्पेस अच्छी होती है, ऑडियो वीडियो का हमने इंतजाम कर दिया और पूरा खाने का इंतजाम हमने कर लिया। और फिर उसके बाद जैसे अब कोई ज्वेलरी का था तो वहां उसने मनमीत ने होस्ट कर लिया। तो एक दूसरे की होस्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी जैसे हम होस्ट कर लेते हैं और भाई ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे एसजीएम है रजौरी गार्डन के, वहाँ ऑफिस है, वहाँ हम जो वहां कर लेते हैं प्रोग्राम, क्योंकि वहां पूरा अच्छा स्पेस है। तो वहां नहीं, होटल्स वगैरह में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एसजीएम, हाँ क्योंकि हमारे रजौरी गार्डन के एसजीएम ऑफिस में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमारे अपने ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम है, हम अपने ऑफिस में भी कर लेते हैं, तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं स्पेस। अभी मैंने देखा था ना, आपने सुबह मुझे भेजा था क्लिप, किधर आपको शायद अवार्ड मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, हाँ वो कहीं और लग रहा है, दूसरा तो के बिग। वहां पर वो अभी हम देहरादून में गए थे, तो देहरादून के गवर्नर ने, जो वुमेन इनोवेटर वालों ने एक क्रिएटर फेस्ट किया था, वहां पर उन्होंने जो 100 वुमेन क्रिएटर्स है तो पूरे इंडिया की, उनको अवार्ड किया था। और हम एज अ लीडर वहां पर, भाई राशि भी थी, मनमीत भी थी और मैं भी थी, एज अ लीडर हम लोगों को भी ऑनर किया गया था, सो क्योंकि गुड। उन्होंने, हाँ कि आप इंस्पायर कर रहे हो आगे वुमेन्स को, कोशिश राह दिखा रहे हो कि और आगे कैसे बढ़ना है। छोटे छोटे स्टेप्स आपके होते हैं, जो बेबी स्टेप्स आपको पता नहीं चलता, मगर वो धीरे धीरे आपकी एक जर्नी क्रिएट करते थे। आई थिंक अनु कालरा को ही जानते हो आप, वो भी मेरे ख्याल गई थी, यू नो हर, अनु कालरा। कौन? अनु कालरा वो भी हमारे प्रोग्राम में आई हुई है, राष्ट्रीय ने बताया। अच्छा शी इज आल्सो अच्छा। वेरी, या शी इज आल्सो वेरी नाइस, शी आल्सो केम। हाँ वो राशि जो है वो भी एक दूसरे को कनेक्ट करती रहती है, कि मैंने ऐसे कहा हम, हाँ शी कनेक्टेड मी। ऐसे ही होता है कि एक से एक बढ़ाते जाओ और भाई एक दूसरे को जोड़ते जाओ। तो ये, दिस इज, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस थिंग्स, बिकॉज़ व्हेन आई वाज देयर वी डिडंट हैव, ऐसा कुछ नहीं था हमारा जब मैं इंडिया में थी। ये तो दिस इज ऑल हम्म न्यू थिंग्स, दिस न्यू जनरेशन या न्यू थिंग्स अब आई। चेंज हो गया इंडिया, आप अब आओ और हाँ, देखो कि फर्क पड़ इंडिया गया। में काफी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जो पहले लोग सोचते थे, इंडिया में काफी ग्रोथ हो गई है, वुमेन हाँ, में काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि उनको वो भी है, हमने भी कुछ करना है, सब एजुकेटेड है, सारी फैमिलीज आपस में एक दूसरे को साथ दे के आगे प्रमोट करती हैं और काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, सब कुछ कर लेती है इंडिया की वुमेन। वही ना, देखो जैसे कहते हैं ना, लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्शन होती है थ्रू द मीडिया। यहाँ इंडिया अमेरिका में कोई, एवरीबॉडी नोज यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे पता चलता हाँ है वहाँ पे क्या, क्या हो रहा है। सो पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ये देखते हैं ये ना कि वहाँ पे लेडीज काम भी करती है, सब कुछ करती है, तो फिर वहाँ पे भी women are doing that too. A lot of women are working, they are taking care of the children, the families. बिल्कुल हमारे अब जो कॉर्पोरेट कल्चर है, हम बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ जो, क्योंकि हमारी कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट पूरा अपना हमारे कनेक्ट्स हैं या कुछ है, तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं जो लेडीज हैं उनको नहीं पता कि कॉर्पोरेट क्या कल्चर होता है, तो वो हम उनको सिखाते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको डिजिटल अवेयरनेस करवाते हैं, डिजिटल प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा कोशिश मिलती है कि भी हाँ यार
ये तो बहुत अच्छी प्रोग्राम है, तो उनको सिखाते हैं पूरा। आप लोग सिखाते और हैं। जो कॉलेज के जैसे बच्चे होते हैं उनको हम इंटर्नशिप करवाते हैं और उसमें पूरा प्रोसेस सिखाते हैं कि भी ये देखो ये डिपार्टमेंट्स हैं, आप कहाँ कहाँ सीखना चाहते हो। लेडीज की जितनी भी वुमेन गर्ल जितनी 12th या कॉलेज के बाद कई फैमिलीज में से नहीं उनको मिलता सपोर्ट, तो हम यहाँ उनको पूरा अपने अंदर इंटरनल तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है या कुछ सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं उनको। वेरी गुड, वेरी 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 इंस्पायरिंग। बिकॉज some पेरेंट्स नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हाँ, तो हम कोशिश करते हैं ऐसे बच्चों को हम अपने ऑफिस में उनको इंटर्नशिप देते हैं, पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, या उनको हम अपना फिर साथ साथ वो जॉब भी कर लेती हैं ताकि उनको अर्निंग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो जॉब्स आजकल, इज इट इजी टू गेट जॉब्स या जो कॉलेज ग्रेजुएट्स या किस किस की जॉब्स, लाइक ऑफिस जॉब्स वगैरह? आई थिंक मोर लॉट ऑफ गर्ल्स आर वर्किंग, तो ऑफिस वगैरह में ही करती, काफी लोग करती हैं कुछ हाँ, हर जॉब्स। तरह की जॉब अवेलेबल है आपको एजुकेशन के हिसाब से और आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, हर तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग आईटी के रिलेटेड, जैसे हमारी आईटी कंपनी है, तो हम यहाँ पर उनको पूरा उनको सेल्स भी सिखाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वुमेन इन सेल्स बहुत कम है, क्योंकि सेल्स में ज्यादातर मेन वो होते हैं। जो होते हैं मैन ओरिएंटेड है। तो मगर हमारे ऑफिस में हम चाहते हैं कि हम आगे करें कि भाई जितनी भी वुमेन है वो हर डिपार्टमेंट को संभाले। ये ना हो कि भी आपके तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा या कुछ नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट भी कर सकते हो, अकाउंट्स में भी वुमेन है, तो हमारे यहाँ पर हम पूरा इक्वालिटी दिखाते हैं। दैट्स गुड, बिकॉज इंडिया में देखो ना, द एजुकेशन इज वेरी वेरी गुड। द एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी हाई। अब देखो सारे जो ग्रेजुएट या ऑल दीज कंपनीज, लाइक अमेरिका में जो भी बिग बिग कंपनीज हैं, काफ़ी सारी, सारे इंचार्ज टॉप में इंडियन है। ऑल सब इंडियन ही आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, आई मीन यू नेम इट, दे आर ऑल टॉप, द गाय टॉप पीपल आर ऑल, लॉट ऑफ देम आर ऑल इंडियंस। गूगल में भी सब, सो दे आर any and then even like big corporations में, हॉस्पिटल्स में देखो, डॉक्टर्स सारे, कितने सारे डॉक्टर्स इंडियन होते हैं, लॉट ऑफ देम। सो that's very very good to know, because when they come from this country में जब आते हैं, like foreign country में भी जाते हैं, they only very well, they can all speak English, big plus, they are very highly educated, very smart, तो जॉब्स वगैरह उनको प्रॉब्लम होती है। अभी देखो यहाँ पे इस कंट्री में काफ़ी सारे स्पेनिश लोग भी हैं, तो बेचारे आते हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो तो फिर अब थोड़ी, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कि भी इंडिया में सब एजुकेटेड है, हाँ, सब अपने exactly. आप को So आगे that's a big बढ़ रहे हैं, big plus that काफी when चेंजेस हैं। they learn English. It's a very important thing. So job anyway, if they go in the world, at least They can talk in English. They can understand the yeah. opportunities or they can achieve their dreams. तो जो भी इंडिया में when they come here, they've advanced actually, उनकी मैथ वगैरह बड़ी एडवांस होती है compared to the over here is like not that advanced in maths. So in India में is very very, मैंने देखा हुआ है, because अपनी बात करती हूँ मैं, जब इंडिया में से when I came here, when I moved here, I was मेरी इंडिया में मैं मैथ में बिल्कुल low, not good. English में yes, I used to like other things, geography, English, history, those subjects. Math में नहीं. But when I came here, मैं कहा, oh my god, मैं तो मैथ के जीनियस हूँ, because मैथ में सब कुछ आता है. Because over here, math is not that. I was like, I can do this, I can do this, I can do this, and so that's how it is. I was surprised at myself कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ. तो इंडिया में I used to feel नहीं, मुझे, because there were a lot of things, geography, algebra, ये भी सीखो, वो भी सीखो. यहाँ पे एक ही मैथ ही कहते हैं, I mean, advanced classes में तो होएगा, but when I came here, I thought I was okay. So that's how that's why I realized कि इंडिया में everything is very high. Education is very very good. कॉलेज की एजुकेशन यहाँ पे काफी लोग आते हैं कॉलेज के लिए, then they go out. ग्रेजुएशन या कुछ है जो जितनी यूनिवर्सिटीज वगैरह उनमें बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे भी अब इंडियन काफी जो है बच्चे वो दे आर कमिंग बैक। मेरे बेटे के भी कैनपुर में उन्होंने पूरी ग्रेजुएशन करी, सब कुछ है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से, और उसने हमारा ही अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम क्लाउड सर्विसेज भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब पढ़ के आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी
पूरी एजुकेशन के साथ उसको आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भी कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ एडवांसमेंट है यहाँ पर, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। right, exactly, that's what I'm saying. But जो privileged kids, sometimes they like to go, Boston में पढ़े हैं, इधर पढ़े हैं, they like to do, go for a few years. And if they have, जैसे आपका अपना इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आपका बेटा 5-6 साल के बाद वापस आ गया ना, came back. हाँ जी, 6 years के बाद। 6 years के बाद. So Yes. otherwise कई लोग वो they don't want to go back. पर अगर आपको अपना इतना चल रहा है, so why not join your own company, your father's company, जो भी आपकी फैमिली की है, तो why not join that? And you are spreading, आप कह रहे हो ना, सब एक्सपैंड कर रहे हो, अभी यूके में भी है। जो हमारी दिशा शेपिंग ड्रीम्स भी हमने करा है, वो हमारी की हमने अपनी, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट कल्चर होता है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, और आई वाज इन द ऑफिस, तो हमें भी पता है कि हमने अपनी कंपनी में से कैसे CSR एक्टिविटीज दिखानी है, हमारी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिशा शेपिंग ड्रीम्स को हमने अपनी सोशल एक्टिविटीज करते हैं या कुछ है, क्योंकि तभी मेरे को लगता है कि भी आप एक कंपनी चला रहे हो और उसके लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोशल अपनी क्या एक्टिविटीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के पास आपको पता है कि भी आपने कंपनी कल्चर में से कैसे एक किसी एक्टिविटी करनी है कि आपकी जो गवर्नमेंट ने या कुछ है यहाँ पे CSR एक्टिविटीज कर रखी है, तो उसको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में बनाकर उसको पूरा कल्चर दिखाकर करना पड़ता है, तो उसको हम कर रहे हैं। तो आप जो जैसे दिशा आपने की जो है दिशा शेपिंग ड्रीम्स इज द CSR एक्टिविटी ऑफ एरोपीसी नेटवर्क। अच्छा, हाँ, आपके मेन कंपनी वही है, लेकिन दिस लेडीज, तो ये आपके जो वर्किंग, जो आपके काम करते हैं, उनकी वाइफ्स है कि बाहर से भी आती हैं, रजौरी गार्डन? हाँ, जहाँ से भी मिल जाए, जहाँ, हाँ, हर, क्योंकि देखो जी, मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ, मैं आसपास अपने पूरी अवेयरनेस करी हुई है, तो कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, कोई भी किसी भी एरिया से, रोहिणी से या किसी भी एरिया से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजौरी गार्डन से ही है, बट येस, वी आर लुकिंग फॉर दी पीपल हु आर हियर, दे कैन कम टू अस, दे कोई उनको हेल्प चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए, वी आर अवेलेबल फॉर देम। तो आप जब उनको सिखाते हो, तो कोई यू मस्ट बी हैविंग जैसे आप कह रहे हो कि जगह में ही सिखाते हो ना, अपने ऑफिस उधर ही हमने अपने ऑफिस में भी कंडक्ट कर लेते हैं सेशंस, अपने हमारे ऑफिस में पूरा अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम्स हैं, वहां पर भी करते हैं, SGM के ऑफिस में भी करते हैं, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं, अब जैसे कुकरेजा हॉस्पिटल वाली मेरी फ्रेंड है, तो ऐसे ही उनके साथ मिलजुल के सब कर लेते हैं प्रोग्राम। दैट्स वेरी गुड। तो और कौन सा, व्हाट इज योर, व्हाट डू यू लुक व्हेन यू लुक एट दिशा, आप क्या देखते हो फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि जितने लीडर्स क्रिएट कर सकूं करूं, जितनी वुमेन लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आगे और लेडीज को अपने साथ ज्वाइन करें और उनको राह दिखाएं कि कैसे हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी एक को देखते हैं या आगे देखते हैं, तो हमें भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आई जस्ट वांट टू क्रिएट मोर लीडर्स सो दे कैन आल्सो इंस्पायर अदर। मतलब आप करोगे, जैसे एक ग्रुप को किया, वो आगे और करें, और आगे बढ़ती जाए, उनका भी ड्रीम हो, उनका ट्राइब बढ़ जाए, this thing can spread. That's a very very तो क्योंकि हमारे जैसे मैं वुमेन इनोवेटर की रजौरी गार्डन की प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे वुमेन इनोवेटर में भी पूरा एरिया स्प्रेड किया हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो ग्लोबल लेवल पे भी हमारी पूरी वुमेन इनोवेटर की जितनी आपको सर्कल बढ़ता 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 चला जाता है। तो ये देखो जी, मुझे राजश्री ने आपके साथ कनेक्ट किया, ऐसे मनमीत के साथ कनेक्ट हैं हम, ऐसे एक दूसरे को आगे 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 फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को रेफर करते रहते हैं, ताकि आप एक दूसरे के साथ बढ़ते जाओ। तो हमको तो अच्छा लगा ना, बिकॉज हमारी जो फ्रेंड्स आ रही हुई अभी जो आई हुई है, कितने कॉम्प्लीमेंट्स लिख रही हैं। किसने लिखा, डू यू वर्क विद स्लम्स में वुमेन जो होती हैं, वही तो कह रहे हैं ना कि जो उनके पास काम करती हैं, हाँ, उनकी वाइफ वो सारी, हाँ जी, उनके आगे आगे बच्चे जो अपनी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखो हम तो ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सब कुछ है। इफ वी विल शेयर अवर कुछ छोटा सा भी पार्ट हम उनके साथ शेयर कर देंगे,
तो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं उनके साथ, और सब कुछ है, तो वो भी अपने आगे आगे फैमिलीज को पूरा डेवलपमेंट कर सकती हैं तो ये लेडीज जो है। कौन से एरिया में रहती हैं? जैसे किसने लिखा? आई डोंट नो इफ यू यहाँ राजा गार्डन के पीछे ना, हर जगह से है, कहीं पे भी है, भी पटेल नगर में भी, बलजीत नगर में भी है, नहीं, स्लम बलजीत एरिया नगर में। कहते हैं, स्लम एरिया हाँ, कहते हैं, कैसे कहते हैं स्लम एरियाज? नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एरिया होता है, वहां पर हम जा सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो एरियाज ऐसे भी हैं जहां हम जाके उनको एजुकेट करते। कुछ स्लम एरियाज हैं यहाँ पर, विशाल इंक्लेव के पीछे थोड़ा सा है, रजौरी गार्डन के पीछे एक एरिया है, वहां पर भी है, तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो देखो, हमें तो कोई मुश्किल नहीं होती, हमें तो रास्ते भी पता है, सब कुछ है। तो उन लेडीज के लिए मुश्किल है, तो हम उनके पास भी चले जाते हैं और उनको बुला भी लेते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा पता चले कि एक कल्चर कैसा होता है, क्योंकि उनको भी दिखाना पड़ता है कि देखो उनकी ऐसे बाहर निकलो। नहीं, मेरा मतलब जो स्लम एरिया में बेचारी रहती हैं, हम्म। तो सब कुछ ही करना पड़ता है ना, पैसे भी देखो, बच्चे हाँ, भी उनके लिए पता आना नहीं, बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता है। है, हम उनको बच्चे भी तो बड़े, बड़े उनके बच्चे मुश्किल भी, से। do they have children? हाँ, Do they still have lot of kids, those women? नो 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 नो, दे आर Okay? डोंट ना। Correct, अब correct. उनके पास भी एक दो बच्चे होते हैं, वो भी ऐसा नहीं है, सब तो चेंज हो रहा है। when I was there, हाँ, एजुकेशन इस चीज की मतलब there were too many babies, kids to take care नहीं of. अब ऐसा नहीं है, So क्योंकि that's good. हमारे जो टोट बैग्स बनवा रहे हैं हम लोग लेडीज से, टोट बैग, कॉटन के टोट बैग्स बनाती हैं जो लेडीज, उनके घर में उनकी फैमिली के बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, स्कूल की उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि हम उनको चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट की जितने लोगोस उस पे लगाकर टोट बैग्स को गिव अवे में यूज करते हैं, और वो लेडीज अपने घर से बनाती हैं और उनको इनकम हो जाती है, इस हिसाब से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेती हैं। तो प्रोग्रेस मतलब हो रहा है, बिकॉज इफ द चिल्ड्रन उनके स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल जी, वो भी बहुत अच्छी they'll get some उनकी job somewhere. एजुकेशन होती है, आप यहाँ पर सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं, किसी बच्चे की फैमिली में किसी को अगर कोई बच्चे की फीस वीस चाहिए तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। That's very good, very 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 inspiring. आपको तो मिलके कितनी, देखो सबको, परविंदर जी कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं आपको कमेंट्स. It's so good that you are inspiring and encouraging the women to go forward. Hats off to you. थैंक्स लॉट, थैंक यू, किसी ने ये थैंक्स। कहा कि अच्छा, मैंने लिखा था कुछ इंडिया के बारे में तारीफ करी थी, तो कहते मेरा भारत महान. ये नीलम लांबा जी हैं, वो भी इंडिया से अभी आजकल यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई हूँ, मतलब yeah, she's in USA, she's visiting, and people are watching. And Pinky ने लिखा है very nice, she's also working the same things are women all over. Correct. Pinky, she's doing, देखो जो हम यहाँ पे करते हैं वहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है, which I'm very happy to hear. सब कुछ हो रहा है, सब हम लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हाँ बस ठीक है, थोड़ा स्लो हो रहा है, बट नहीं, चल रहा है, सब एक दूसरे से सीख सीख के आगे बढ़ाते हैं। तो Great हम discussion, good program. बस यही ना, people are watching and they're passing the comment. Family का situation मैंने आपको पूछा. Never too late to learn. Great job, you're doing good, Parvinder ji. थैंक्स अ लॉट। Which you will give them the time. जो आपने सिखा रहे हो कहते हैं बहुत अच्छा है, ये सब comments लिख रहे हैं. So I'm very happy to hear that you're doing this kind of a thing. And जैसे अपनी तरफ से सब भी मनमीत भी कुछ करती है, she must be helping too. She has her own, does she have her own company or something, or does she do that? हाँ जी, उसकी जेम्स एंड ज्वेल्स है, तो वो ज्वेलरी बनाते हैं, और कुछ है कि भी ऐसे आर्टिस्टेंट्स के ज्वेलरी बनवाते हैं और उसको सेल करते हैं। बस गुड हेल्प हो तो उनको ज्वेलरी, जिसको ज्वेलरी का शौक है सीखने का, तो वो उस चीज आपके यूएसए में तो वैसी बड़ी डिमांड है ज्वेलरी की। हमारे पीछे मेरे हस्बैंड अलास्का गए थे, तो उनकी क्रूज में वो कहते हैं कि वहां पर तो इतनी सेल हो रहा था और काफी लोग खुश होके बाय कर रहे थे ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी। या नहीं, ज्वेलरी तो वहाँ पे बहुत इयररिंग्स एंड एवरीबॉडी वेयर्स, फैशन ज्वेलरी लेडीज बहुत पहनती हैं, दे लाइक कपड़ों के साथ तो इंडियन ज्वेलरी अच्छी लगती है, बट यहाँ के दूसरी भी पहनती हैं, वेस्टर्न टाइप, तो बहुत सब कुछ चलता है. सो दिस इज वेरी वेरी गुड टू, आपके साथ सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है. रियली रियली एंजॉयड. वी हैव टू हैव अनदर सेशन आफ्टर फ्यू मंथ्स. जब भी आपको चांस मिला तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताना हमारे प्रोग्राम के बारे में.
श्योर, डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और आओ कभी, देखो भी हमारा प्रोग्राम, मेंबर भी बनो हमारे प्रोग्राम का भी। एंड आपका भी स्प्रेड देखो, सब काफ़ी लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। राजू चौहान जी, गुरप्रीत सिंह जी, करण सिंह, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अनिल मल्होत्रा, आई थिंक आपके ही फ्रेंड्स हैं मेरे ख्याल। लेट मी सी हु एल्स, सम अदर पीपल। संजीव एंड श्रिया ठाकुर, आपके फ्रेंड है? हाँ जी। अच्छा, वो भी हैं। सो एनीवे, मैं किरण जी, हम यहाँ के भी काफ़ी फ्रेंड्स हमारे आए हुए हैं, कमलेश जी, रमा जी। सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ऑफ कोर्स प्रविंदर जी, ग्रेट टू सी यू एंड ग्रेट टू कम टू आवर दिल दिया गल्ला। तो देखो हमने दिल की बातें कर ली ना काफ़ी सारी। हाँ, काफी सारी, बहुत। चला कुछ कवर किया हमने। टाइम का पता नहीं चला, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आपने बहुत अच्छा आपको आपने हमको बताया, really inspired us, and it's good to know what's happening back home. We should know what the women are doing. There are a lot of women helping, so it's good to know all that, you know. बिल्कुल, मेरा तो मोटो यही है कि जितनी भी लेडीज घर पे बैठी हुई हैं, उनको लगता है कि एज इज नो बार। आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सोचना है कि आपने करना है। जब आप सोच लेते हो, जब अपना अचीव कर लेते हो, अपने आप छोटे छोटे स्टेप से आपका ड्रीम अचीव हो सकते हैं। डोंट थिंक कि मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे करना ही नहीं है। बट यस, यू हैव टू डू समथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि आपको कुछ करना है। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। And be open to learning. That's what I'm saying. Knowledge is always good to know. I mean, the more you know, the better it is. And कोई लिमिट नहीं, एज की तो कोई, it's just a number, कहते हैं ना, एज नंबर है बस, ऐसे और कुछ नहीं है। बाकी सीखना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बहुत अच्छा आपने कहा है। I mean, I would love to have you again. And you know, I've got to thank Rajshri. That was a very wonderful program. Good to hear from you and see you, and really we got inspired. And good to, I'm very happy to see कि India में Thank you. these things. It's Yes, things are changing in India. changing in India is really, like I said, आपके कुकिंग के लिए तो मुझे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपको हम बहुत अच्छा होम कुक फूड खिलाएंगे। Thank you so much, and I want to thank all of you who joined us today, all the ladies and gentlemen who joined our program today. आते रहो, हमारे प्रोग्राम्स मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होते हैं, सेम टाइम 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। एंड ऐसे मंडेज को हमका इस टाइप का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट वीक वी हैविंग अ डॉक्टर, एंड देन एवरी वीक वी हैव डिफरेंट। वेडनेसडेज को इज यूजुअली म्यूजिकल ओरिएंटेड, बट कैन ऑल्सो बी अ कुकिंग क्लास एंड अदर थिंग्स, शायरी भी होती है। फ्राइडेज को हमारा शुक्राना होता है, विच इज़ लिटिल रिलीजियस यू कैन से, जिसमें आप भजन शब्द जो मर्जी गा भी सकते हो और बात भी कर सकते हो about any religion topic you like to do. So we are here, and do get in touch with me if you need to come to our program. I'm there, always there. My name is Veena Lamba. Please do join, and if you have any ideas, do let me know. And thank you so much, all of you. Have a wonderful day. Thanks to you. Thank you, Veena ji. आप wait करना एक मिनट। Rajshri. Yes, thanks to her. Thanks to all your friends and audience. Thanks. Thanks for joining. Thank you.